Hello students, welcome to my channel. In this video, I am going to discuss exercise 2.1 question number 11 to 21. For the remaining questions, you can see my previous videos. This is my live class schedule. Please do join and please share with others. Coming to the first question, that is question number 11, we need to find the values of each of the following. So, here sine inverse 1 by 2. Take y is equal to sine inverse 1 by 2. So, we know the range of sine inverse is closed interval minus pi by 2 comma pi by 2. Okay. So, here what will be the value for this? Pi by 6, because we know the sine 30 degree value is 1 by 2. 30 degree मतलब pi by 6. ठीक है. तो नेक्स्ट दिस पाई बाई 6 इज बिलोंगिंग टू माइनस पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2. tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 sin inverse 1 by 2. This is equal to tan inverse 2 cos 2 into sin inverse pi by 2 is pi by 6. So pi by 6 tan inverse 2 cos पाई बाई 3. ठीक है. तो देखो cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? cos पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 2. तो tan इनवर्स 2 इंटू 1 बाई 2. दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स 1. तो tan पाई बाई 4 इक्वल टू 1 होती है. सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan pi by 4. So pi by 4. Okay. This is the answer. Now we'll move to the question number 12. Here also we need to find the values of this. Okay. So we know this is very important property. Tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2. तो देखो cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a. ओके. तो फॉर्मूला से हम क्या बोल सकते हैं? इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं? cot ऑफ पाई बाई 2 दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो cot पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है. तो आंसर इज 0. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन tan of half into this expression is given. Okay. So we will substitute, put x is equal to tan theta. हम कैलकुलेट कर लेते हैं साइन इनवर्स अंदर वाला जो है साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square एंड cos इनवर्स. तो साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square is equal to साइन इनवर्स 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta. So this is equal to sin inverse 2 tan theta by secant square theta. So sin inverse 2 sin theta by cos theta into cos square theta. So this is equal to sin inverse 2 sin theta cos theta. So sin inverse sin 2 theta. This means this is 2 theta. And for the cos inverse also हम देख लेंगे यहाँ से. Put y is equal to tan alpha. Okay. So cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square. This is equal to cos inverse 1 minus tan square alpha by 1 plus tan square alpha. Okay. So cos inverse 1 minus tan square alpha by secant square alpha. This is equal to cos inverse cos square alpha minus tan square alpha means sin square alpha by cos square alpha. तो कैंसिल हो जाएगा sin square alpha. This is equal to cos inverse cos 2 alpha. तो आंसर इज 2 alpha. तो अब देखो tan of
1/2 sin inverse 2x by 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square by 1 plus y square is equal to tan of 1/2 into 2 theta plus 2 alpha. So this is equal to tan of theta plus alpha. So tan of, this is tan theta plus tan alpha by 1 minus tan theta tan alpha. So this is equal to tan theta value is x, tan alpha value is y, x plus y by 1 minus xy. So this is the answer. So I hope you all understood this question as well. Moving to the question number 14. So in these questions it is saying that sin of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1. Okay. So sin of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse 1 by x is equal to 1. So we know that sin pi by 2 value is equal to 1. Okay. So sin of sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sin pi by 2. So sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to pi by 2. From this side we can get cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse 1 by 5. And we know the formula, cos inverse x plus sin inverse x is equal to pi by 2. From here it will be cos inverse x is equal to pi by 2 minus sin inverse x. Okay. So this will become cos inverse 1 by 5. So from left and right side we can say that x is equal to 1 by 5. X is equal to 1 by 5. So this is the answer. So I hope this is also clear to every one of you. Moving to the question number 15. So here we need to prove if tan inverse, okay, this is equal to pi by 4, then find the value of x. So हमें formula पता है, we know the formula, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y by 1 minus xy. ये formula हमें पता है. तो tan inverse x minus 1 by x minus 2 plus tan inverse x plus 1 by x plus 2 equal to pi by 4. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan inverse of, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2, 1 minus x minus 1 upon x minus 2 into x plus 1 upon x plus 2 equal to pi by 4. ओके. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स उधर साइड चला जाएगा, फिर इधर क्या है, एलसीएम करते हैं, प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 and this divided by x minus 2 into x plus 2 minus x minus 1 into x plus 1 divided by x minus 2 into x plus 1 equal to 1. ओके. सो यहाँ से क्या हो रहा है, देखो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा. फिर न्यूमरेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, तो x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x, तो माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1. ओके. तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया है. फिर हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू 1. तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 upon root 2. So this will be the answer. We have to find the value only, value of x.
नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच एक्सप्रेशन. तो देखो साइन 2π/3 इक्वल टू क्या होती है, साइन 120 डिग्री. इट्स डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन π - π/3. तो क्या हो जाएगा, साइन π/3, बिकॉज साइन π - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सो देखो ये π/3 क्या है, इसमें बिलोंग होती है, π/3 बिलोंग्स टू -π/2 π/2. तो देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 इज इक्वल टू क्या हो गया है, साइन इनवर्स साइन π/3. दिस इज इक्वल टू π/3. सो आंसर इज π/3. डायरेक्टली हम 2π/3 लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब काफ़ी लोग ने लिख देंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, बट ये गलत है क्योंकि इस रेंज पे बिलोंग होनी चाहिए. जो रेंज पे नहीं है वो नहीं आएगा वैल्यूज में. तो चलो देखते हैं. सिमिलरली टैन के लिए भी, टैन की रेंज क्या है, रेंज ऑफ टैन इनवर्स माइनस ओपन इंटरवल -π/2 π/2. तो टैन 3π/4 दिस इक्वल टू टैन 135 डिग्री. 135 तो डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 π/2. ओके, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4. तो क्या हो जाएगा, -tan π/4, बिकॉज tan ऑफ π - थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो -tan थीटा होती है. ठीक है, तो देखो क्या हो गया है, tan इनवर्स ऑफ -tan π/4. तो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ -π/4, because tan of -x is equal to -tan x. ओके, तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, -π/4. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 18. तो साइन इनवर्स एंड कॉट इनवर्स दोनों को ही हमें टैन में फाइंड करनी है, तो कॉट टैन में कन्वर्ट करनी है पहले. कॉट इनवर्स 3/2 मीन्स टैन इनवर्स 2/3, रेसिप्रोकल हो जाती है. साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू मान लो y. तो साइन y की वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/5. तो हमारे पास पाइथागोरस है, ट्राइंगल है, हम ड्रॉ करेंगे ट्राइंगल 3, 5. तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस अप्लाई करके 4. तो देखो tan की वैल्यू क्या हो गया है, 3/4. तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4. तो अब देखो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसकी फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 3/4 प्लस 2/3 बाई 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 कैंसिल्ड. तो tan इनवर्स एलसीएम निकालते हैं, 9 + 8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/2. तो tan इनवर्स 17/12 इंटू 2. ठीक है, तो 17/6. अब क्या बोल रहा है, tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2. तो इसके ही तो वैल्यू आ गया है हमारे 17/6 ना. तो tan ऑफ 17/6, एक मिनट, tan ऑफ tan इनवर्स, इसमें मैंने tan इनवर्स लिखना भूल गई हूँ. ये क्या था, tan इनवर्स 17/6. ठीक है, तो tan ऑफ tan इनवर्स 17/6. तो 17/6 इज द आंसर. सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19. तो देखो रेंज ऑफ cos इनवर्स इज 0, π. तो cos 7π/6 इक्वल टू cos 210 does not belongs to 0, π.
तो हम क्या लिखेंगे, पाई प्लस पाई बाई 6 या 2 पाई माइनस 3 पाई बाई 6 आएगा, आई थिंक सो 5 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6। ओके, तो देखो 2 पाई माइनस थीटा क्या होती है, कॉस 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस पॉजिटिव, सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 5 पाई बाई 6 एंड 5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री। ये बिलोंग कर रहा है 0 पाई में, ये 0 पाई में बिलोंग होता है। ओके, तो देखो अभी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई बाई 6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स cos 5 pi by 6. Okay, so this is equal to 5 pi by 6. Moving to the question number 20. क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, देखो पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इक्वल टू पाई बाई 3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। सो साइन इनवर्स 1/2 मतलब ये क्या होती है, पाई बाई 6। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई, तो 3 पाई बाई 6, तो क्या आ रहा है पाई बाई 2। तब देखो साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2, सो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, सो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो बेसिकली tan इनवर्स √3 है एंड cot इनवर्स -√3 है, तो cot इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स एक्स होती है। ओके, तो tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स ऑफ -√3 इक्वल टू tan इनवर्स √3 मतलब tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3 माइनस cot इनवर्स √3 मतलब पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ √3। तो ये क्या है, पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस cot इनवर्स ऑफ cot पाई बाई 6। ओके, सो पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6, तो क्या हो रहा है देखो 6, तो 2 पाई माइनस 6 पाई प्लस पाई, तो -3 पाई बाई 6, तो आंसर -पाई बाई 2। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप you all understood these solutions. If anyone have any doubt, please do message me or do comment in the comment sections. Okay, if anyone needs any other solutions, any other books solution, please do mention in the comment section. या दिस इज माई टीचमेंट प्रोफाइल। अगर किसी को पेड क्लास चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें टीचमेंट पे। ये मेरी लाइव क्लास की शेड्यूलर डेली होती है, तो प्लीज़ डू जॉइन एंड प्लीज़ शेयर विद अदर्स। Thank you for watching this video. Those who are new to this channel, don't forget to subscribe this channel. Thank you.